Hello students, today's topic of discussion is class D commutation, that is also known as impulse commutation. So we have seen three categories of commutation: class A, class B and class C. Class A was the self commutation or the load commutation. Class B and C was a force kind of commutation. One is the resonant pulse and another one was the complementary commutation. Today's topic is impulse commutation technique. Let's see how this will perform. For examining class D or impulse commutation, refer to the circuit 5.5a. Let's see the circuit. In this figure, T1 and TA are called main and auxiliary thyristor respectively. This is known as main thyristor and this is known as auxiliary thyristor. If you remember class B type of commutation technique, this thyristor was placed here. This thyristor TA was placed here. This T1 was here only, but this TA was this here, and this diode was placed here. This inductor and this capacitor was placed in the series in the middle branch. This was the diagram when we studied about the class B type of commutation technique. Okay, so a little bit of what you can say the modification has been done in the circuit, और उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि किस तरीके से इस impulse commutation को perform किया गया है. Initially, main thyristor T1 and auxiliary thyristor TA are off and capacitor is assumed charged to the voltage Vs with upper plate positive. इनिशियली T1 और T1 और जो TA है उसको ऑफ एज्यूम किया गया है और ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है किससे, जो भी सोर्स वोल्टेज है Vs उससे. कैसे, किस तरीके से चार्ज होता है? अपर प्लेट पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर प्लेट, बॉटम प्लेट, और वहां से एक करंट मिल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं IC, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर IC. Source voltage Vs is applied across the load and load current I0 begins to flow. अच्छा, कब? जब when T1 is turned on at T equals to, जब T equals to 0 पे T1 को टर्न ऑन करते हैं. पहले दोनों को ऑफ एज्यूम किया गया था. अब T1 पे जैसे ही T1 को टर्न ऑन किया T equals to 0 पे, एक सोर्स वोल्टेज जो Vs है उसके कारण एक लोड करंट फ्लो होता है I0, which is assumed to remain constant with T1, which is assumed to remain constant with T1 on at T equals to 0. Another oscillatory circuit consisting of C, this is C, T1, this is T1, L, this is L, and D. This circuit, the outer loop you can say, this capacitor C, this T1 thyristor, this inductor L, and this diode D. So we are still assuming that TA is off, or we have made TA off. We have only triggered the T1. तो इसकी वजह से ये वाला जो आउटर लूप है वही बस काम कर रहा है. ये जो बीच वाला जो थायरिस्टर है TA, आपने उसको क्या एज्यूम किया है या क्या किया है, अभी ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है. ठीक है, ये देखते हैं ऊपर. ये आपने किसके गेट को ट्रिगर किया भाई? IG1 किसका गेट का ट्रिगरिंग पल्स है? ये है इसका ट्रिगरिंग पल्स T1 का. अभी आपने क्या IGA मतलब ये इसका TA का ट्रिगर पल्स, उसको आपने ट्रिगर किया है क्या? नहीं किया है, वो ऑफ है. तो ये ऑन होने की वजह से क्या करंट फ्लो हो रहा है? लोड के अक्रॉस I0 करंट फ्लो हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, चलिए. अब ये रिजोनेंट जो सर्किट फॉर्म हुआ है ना, इसकी वजह से ऑसिलेटरी सर्किट जो फॉर्म हुआ है उसका जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आता है. ये सेम इक्वेशन है जो हमने क्लास बी में पढ़ा है. ठीक है, IC इक्वल्स टू IP साइन ओमेगा टी. ठीक, इसमें कुछ भी नया नहीं है उसके रिस्पेक्ट में. ये देखो, ये वही ओमेगा की वैल्यू जब पाई पाई अपॉन ओमेगा नॉट हो तो इस तरीके का करंट मिलता है. पहले इनिशियली क्या होगा, वो चार्ज होगा, जो पीक करंट है उसको आप IP बोल रहे हो, फिर वहां से धीरे 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 कैपेसिटर के अक्रॉस वो करंट जो है डिस्चार्ज होता है. ठीक है, तो व्हेन ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई, IC इक्वल टू 0, बिटवीन 0 टू पाई अपॉन ओमेगा नेट ओमेगा नॉट, IT नॉट इक्वल्स टू I0 प्लस IP साइन ओमेगा नॉट टी. बिल्कुल, ये जो करंट फ्लो होगा, I0 तो फ्लो हो ही रहा है ये लोड में. ठीक है, और इस पूरे लूप के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? IP, ये जो IC है ये भी फ्लो हो रहा है ना, और IC इज नथिंग बट IP साइन ओमेगा नॉट टी. ये जो IC है उसको डिटरमाइन करने के लिए आपने इन चारों कंपोनेंट्स को एक साथ लिया हुआ है, तो वो कितना आ गया है? IP साइन ओमेगा नॉट टी, और I नॉट तो फ्लो हो ही रहा है, तो दोनों का समेशन ओवरऑल करंट हम निकालेंगे अगर थायरिस्टर से, तो क्या हो जाएगा? IT1 इक्वल्स टू I नॉट प्लस IP साइन ओमेगा नॉट. Okay, capacitor voltage changes from Vs to minus Vs co-sinusoidally and the lower plate becomes positive.
अब साइनोसॉइडल का जब दूसरा एक्सिस आएगा, पिछले बार भी हम लोगों ने ये चीजें देखी है, पिछले बार भी उसके पिछले बार भी, कि भाई जब चेंज होगा आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज, तो नेगेटिव एक्सिस जब आएगा उसका नेगेटिव हाफ आएगा, सॉरी एक्सिस बोलो, नेगेटिव हाफ जब आएगा तो उस नेगेटिव हाफ के लिए आपका जो वीएस है वो माइनस वीएस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोअर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ओके, एट ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई, आई सी इक्वल टू जीरो, आई टी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट, एंड वी सी इक्वल्स टू माइनस वी एस। अब ये यहाँ से देख सकते हैं, ये फिगर बी है। शुरू में ये वाला फिगर हम लोगों ने देख लिया। अब आई टी नॉट की वैल्यू ये जो फ्लो हो रही थी, ये देखो, ये आई नॉट प्लस आई पी जो हम लोग अभी बोल रहे थे, कौन से पीरियड में? पाई अपॉन ओमेगा नॉट तक। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? आई नॉट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी एस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जब वी एस शिफ्ट होगा किसकी तरफ? ये साइनसोइडल। अभी देखो यहाँ से ये शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से शिफ्ट हुआ नीचे, तो कहाँ से, कौन से एक्सिस में चला गया? माइनस वी एस एक्सिस में चला गया। ठीक है, और माइनस वी एस एक्सिस में चला गया तो अब आपको टी वन को क्या करना पड़ेगा? ऑफ लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो माइनस वी एस हो गया, तो माइनस वी एस होने के कारण टी वन क्या हो गया? ऑफ हो गया। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे टी वन ऑन हुआ था, लेकिन जब जैसे जैसे हम टाइम इंस्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, ये पोलैरिटी रिवर्स होती है। पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण जो वोल्टेज है यहाँ से क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। अब उसके बाद आप आगे देखिए किस तरीके का एनालिसिस है। एट टी वन ऑक्सिलरी थायरिस्टर टी इज टर्न ऑन। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर टी इज ऑन, कैपेसिटर वोल्टेज वी एस अप्लाइज अ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस मेन थायरिस्टर टी वन, so that VT1 equals to minus Vs and T1 at T1 and SC at T1 is turned off and IT1 equal to 0। तो हमने T1 को क्या कर दिया? टर्न ऑफ कर दिया है, और IT1 जो है वो क्या हो गया है? जीरो हो गया इस इंस्टेंट के बाद। ठीक है, जैसे ही ये VT1 माइनस वी एस पे शिफ्ट हुआ, ये देखो, ये VT1 यहाँ से माइनस वी एस पे शिफ्ट होता है, और IT यहाँ से क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ये है IT1 जो ऑफ हो गया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट से, जैसे ही VT1 माइनस वी एस पे शिफ्ट हुआ। और शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई है? यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये जो VC है वो माइनस वी एस पे शिफ्ट हो रहा है, इट विल रिफ्लेक्ट अक्रॉस दी VT1 एंड ऑल्सो अक्रॉस दी IT1। तो अब एट टी इक्वल टू T1 पे कौन ऑन हो रहा है? TA ऑन हो रहा है। ऑफ कौन हो गया? T1 ऑफ हो गया। तो T1 ऑफ हो चुका है, और कौन ऑन हो चुका है? TA ऑन हो चुका है। अब आप इस सर्किट में देखेंगे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ इस सर्किट को, तो क्या क्या चीजें बचती है उसके बारे में एनालिसिस। ठीक है, तो हाँ, द लोड करंट इज नाउ कैरिड बाय कैपेसिटर एंड टीए। अब लोड करंट टीए कैरी कर रहा है, टी1 तो है नहीं। कैपेसिटर गेट्स चार्ज फ्रॉम माइनस वीएस टू वीएस विद कांस्टेंट लोड करंट आई नॉट। दिस चेंज, द चेंज इज देयरफॉर लीनियर फ्रॉम प्लस वीएस टू माइनस वीएस एज शोन। व्हेन वीसी इक्वल्स टू वीएस, आईसी इक्वल टू 0 एट टी2। ठीक है, थायरिस्टर टीए इज टर्न ऑफ। जब Vc जो है Vs को अचीव कर लेता है, तो IC की वैल्यू जीरो हो जाती है। जब Vc Vs को अचीव कर लेता है, ये देखिए, तो IC की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है, ये जब माइनस Vs वाला ट्रांजिशन हो रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो IC है वो नेगेटिव हाफ में चला गया था, इसी पोलैरिटी के कारण। ठीक, और जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है, क्या, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो स्टोर होना चालू होता है, वैसे ही इसके अक्रॉस जो करंट है वो भी क्या हो जाता है? जीरो की तरफ जाने लगता है। मैंने आपको बताया है कि जो कैपेसिटर है वो कैसा डिवाइस है? वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है। जो करंट है उसके अक्रॉस जो है, जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा, जैसे ही मतलब उसके अक्रॉस आप स्विच को कनेक्ट करेंगे, आपका जो पोटेंशियल्स है, बैटरी में जो पोटेंशियल्स है वो क्या होते जाएंगे? स्टोर होते जाएंगे। स्टोरेज जब मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, व्हेन इट विल रीच टू मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? Vs है। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? Vs है। तो जैसे ही वो Vs स्टेट अचीव कर लिया, सारा वोल्टेज जो है किसके अक्रॉस स्टोर हो गया है? कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर हो चुका है। तो उस केस में आप TA को अब ऑफ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये ट्रांजिएंट कंडीशन है। अगर इंडक्टर होता और इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम करंट स्टोर कर रहे होते, तो अगर पूरा करंट उसके अक्रॉस स्टोर हो गया है, तो आप उसके अक्रॉस वोल्टेज को आप क्या लेके चलते हैं? जीरो लेके चलते हैं। सिमिलर इज द केस विद द कैपेसिटर। पूरा वोल्टेज उसके अक्रॉस स्टोर हो चुका है, आप करंट को क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं उसके अक्रॉस। यहाँ पे आप देखिए, during the time ta is during the time ta is on from t1 to t2, vc equals to vt1। ठीक है, for main thyristor t1, circuit turn off time is tc as shown in figure 5.5b, जो हम लोगों ने अभी देखा ऊपर।
With the firing of thyristor Ta, a reverse voltage Vs is suddenly applied across T1. This method of commutation is therefore also called voltage commutation. With sudden appearance of reverse voltage across T1, its current is quenched. In fact, the current momentarily reverses to recover the storage charge of T1. As an auxiliary thyristor Ta is used for turning off the main thyristor T1, this type of commutation is also known as auxiliary commutation. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है आपके क्लास बी से। उसमें डायरेक्टली T1 जो है वो TA जो है T1 को ऑफ नहीं कर रहा था, इसमें कर रहा है। ठीक है, when thyristor TA is turned on, capacitor gets connected across T1 to turn it off. This type of commutation is also called as parallel capacitor commutation. क्योंकि ये जो कैपेसिटर है सारा खेल उसी का है। ये कैपेसिटर जब इसके अक्रॉस होता है, ठीक है, तो किसको टर्न ऑफ कर देता है, TA को। जब इसके अक्रॉस होता है तो किसको टर्न ऑफ कर देता है, T1 को। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के कारण, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास डी टाइप ऑफ कम्यूटेशन टेक्निक। ओके, so in next lecture we will discuss about some other commutation technique. Two commutation techniques are left, class C and class F. That is the topic of the next lecture. Thank you for watching and listening.